Hi everyone, welcome to MBA Pathshala. Hope you're doing well. So this is the next video in the best of CAT LRDI practice series. So again, we have a set from CAT 23 today, right? Again, this is slot one, right? Right. So we are currently running an offer, right? If you want to enroll for this offer, and you can use this coupon code for any of the courses that are listed on our website, right? So you can definitely go ahead and check out these courses. Okay, chalo. So let's begin with the set for today. And as always, first pause this video right here itself. Try the set first yourself and then proceed on with the rest of the solution. Now let's try to read this first because this is a lot of information to gather, right? And then we'll simplify things up and we'll then simply go ahead and use the diagram itself. Okay. चलो let's read this. क्या दिया हुआ है यहाँ पे? So the schematic diagram below shows 12 rectangular houses in a housing complex, right? So basically we have 12 houses in rectangular boxes mentioned. Okay. House numbers are mentioned in the rectangles representing the houses. So the house numbers are A1, A2, B1, B2, C1, C2, so on till F1, F2. So that these are the 12 houses. The houses are located in six columns, column A through column F, right? So column A, column B, column C, then column D, column E, and column F, and two rows. So that is R1, and this is row 2, right? R1, R2. The houses are divided into two blocks, block XX and block XY. So the blocks में divided है XX and the remaining six houses are in block YY. The diagram also shows two roads, one passing in front of the house in row 2 and another in between the two blocks. So यहाँ पे एक ये रोड है और आपका एक ये रोड आपके पास हो रही है, राइट? रोड का भी आपका यहाँ पे काफी रेलेवेंस है. Let's read further. Some of the houses are occupied, right? So we have some of the houses that are actually occupied. The remaining ones are vacant and are the only ones available for sale. तो occupied है वो sale के लिए available नहीं है. Next, the road adjacency value. Now this is very important. The road adjacency value is the number of its sides. ये किसी भी house के respect में है. So the road adjacency value of a house is the number of its sides adjacent to a road, right? So एग्जाम्पल भी देख सकते हो डायरेक्टली. बेसिकली वो ये कहना चाहता है नंबर ऑफ साइड्स एडजेसेंट टू अ रोड. फॉर एग्जाम्पल दिस इज टेकिंग द केस ऑफ लेट्स से C2 फॉर एग्जाम्पल. नाउ C2 का कितना है? 2 है. क्यों C2 का 2 है? बिकॉज C2 के कितने लाइक उस पर्टिकुलर हाउस को अगर आप एज अ स्क्वायर इमेजिन करो, रेक्टेंगल इमेजिन करो, तो उस हाउस के कितने साइड्स आपके रोड के एडजेसेंट है? दिस वन एंड दिस वन. इसीलिए C2 का रोड एडजेसेंसी वैल्यू कितना हो गया आपका? 2 हो गया. सिमिलरली व्हेन इट कम्स टू F2, तो F2 अगर नोटिस करो तो सिर्फ एक ही साइड इसका रोड को फेस कर रहा है, राइट? दैट इज 1. And for B1 for example, B1 none of his sides are actually facing the road, इसलिए B1 का road adjacency value कितना लेंगे हम? 0 लेंगे. Then it talks about the neighbor count of a house. The neighbor count of a house is the number of sides of that house adjacent to the occupied house in the same block. Wait, number of sides adjacent to occupied houses in the same block. Now यहाँ पे प्रॉब्लम ये है, जैसे कि रोड एडजेसेंसी वैल्यू तो स्टार्टिंग से आपका हर हाउस का फिक्स हो जाएगा, राइट? वेदर इट इज वेकेंट और इट इज ऑक्यूपाइड. बट द नेबर काउंट ऑफ अ हाउस विल नॉट बी फिक्स्ड, राइट? बिकॉज अभी आपको ये नहीं पता कि कौन से हाउसेज आपके फिक्स है, मतलब कौन से हाउसेज आपके ऑलरेडी ऑक्यूपाइड है और कौन से आपके अनऑक्यूपाइड है, राइट? बिकॉज जो नेबर का काउंट होगा इट विल बी विद रिस्पेक्ट टू द ऑक्यूपाइड हाउसेज. जैसे यहाँ पे एग्जाम्पल क्या दिया हुआ है? फॉर एग्जाम्पल E1 एंड C1 कैन हैव द मैक्सिमम पॉसिबल नेबर काउंट्स. मैक्सिमम वर्ड इसीलिए यूज किया है बिकॉज उससे ऊपर नहीं हो सकता उसके, लेकिन नीचे हो सकता है, राइट? जैसे किसके लिए बात कर रहा है उसने एग्जाम्पल में? E1 के लिए. फॉर एग्जाम्पल E1 का नेबर काउंट कितना है तुम्हारा? 3. लेट्स टेक E1. नाउ E1 का नेबर काउंट हमारा 3 मैक्सिमम पॉसिबल कब होगा? जब आपका D1 भी ऑक्यूपाइड हो, F1 भी ऑक्यूपाइड हो और E2 भी ऑक्यूपाइड है. तो ये मैक्सिमम पॉसिबल है. ऑब्वियसली इनमें से अगर इन तीनों में से कुछ भी अनऑक्यूपाइड है तो इवन का जो नेबर काउंट होगा वो ऑब्वियसली कम हो जाएगा. बट दिस इज द मैक्सिमम पॉसिबल नेबर काउंट. एक और एग्जांपल दिया हुआ है, उसको भी देख लो. C1 का जो मैक्सिमम पॉसिबल नेबर काउंट है कितना है? 2 है. C1 का मैक्सिमम पॉसिबल नेबर काउंट 2 क्यों है? क्योंकि इसके साइड एक इस हाउस को फेस कर सकते हैं और एक इस हाउस को फेस कर सकते हैं, राइट? एंड हेंस द मैक्सिमम पॉसिबल नेबर काउंट फॉर C1 वुड बी 2.
Then it talks about the base price of a vacant house is rupees 10 lakh if the house does not have a parking space, and rupees 12 lakh if it does. So base जो price है आपका, right? The base price of a house can have two values depending on whether it does not have a parking space and if it does have a parking space. तो ये भी आपका एक इसमें कॉम्प्लिकेशन है. नेक्स्ट जो आपका फाइनल कैलकुलेशन है, राइट, वो कैसे होने वाला है? द कोटेड प्राइस in lakhs of rupees of a vacant house. Vacant house obviously for sale है तो उसी का आपका price quote होगा. So it will be the base price, that is either like 10 or 12 plus 5 times of the road adjacency value plus 3 times of the neighbor count. Right? I hope this is clear. So इसी like जो आपका total quoted price है इसी के अराउंड आपके कुछ statements ही है and we have to figure out all the remaining ones. ठीक है. नाउ लेट्स गो टू द नेक्स्ट स्लाइड एंड यही सारी इंफॉर्मेशन जो आपका फर्स्ट ये सेट ऑफ आपके पैराग्राफ्स में था ये हमने क्लियरली समझ लिया है. दैट इज बेस प्राइस either 10 or 12 डिपेंडिंग ऑन द पार्किंग स्पेस अवेलेबिलिटी प्लस 5 टाइम्स रोड एडजेसेंसी वैल्यू प्लस 3 टाइम्स राइट नेबर काउंट. ये हमारा फिक्स रहेगा. सो विल ड्रॉ दिस या विल काउंट द एडजेसेंसी वैल्यू विद द वेरी स्टार्टिंग एंड हम नेबर काउंट भी हम मैक्सिमम पॉसिबल अज्यूम करके चल लेंगे. ठीक है. नाउ फर्स्ट थिंग्स फर्स्ट, हम क्या कर लेते हैं? सबसे पहले हम क्या कर लेते हैं इसमें ना, हम रोड एडजेसेंसी वैल्यू फिगर आउट करके लिख लेते हैं. ठीक है, बिकॉज वो तो यूनिक है. सो आई यूज रेड कलर फॉर द रोड एडजेसेंसी वैल्यू. सो C1 C2 इसके कितने साइड्स रोड को फेस कर रहा है? ओनली वन. लाइट दिस इनसाइड, राइट, दिस इज वन. C2 का फिर 2 हो जाएगा. सो सिमेट्री ये कहती है कि D1 D2 का भी 1 and 2 होगा, राइट, सिमेट्रिक लोकेशंस. देन B1 B2 का B1 का 0 हो जाएगा, A1 का 0 हो जाएगा. सिमिलरली E1 का भी 0 साइड्स फेसिंग द रोड, सो दिस इज 0 एंड दिस इज अगेन 0. A2 B2 के like one side facing the road, so this is one, and obviously this is also one, and this is also one. So these are the road adjacency values. Next up, I'll actually go ahead and write the maximum possible neighbor count. Right? This has to be very clear. I'm only writing the values which are actually the maximum possible neighbor count. Because exact अभी अपने को पता ही नहीं है, वो तो हम figure out करेंगे through these conditions. So maximum possible neighbor count क्या हो सकता है? एग्जाम्पल्स दिए थे उसी को फॉलो कर लेते हैं. सो D1 का मैक्सिमम पॉसिबल नेबर काउंट क्या होगा? यहाँ बाहर लिख लेते हैं. ठीक है. सो इट विल बी व्हाट 1 and 2. सो दिस इज 2, राइट. D2 का कितना होगा? अगेन 2, दैट इज 1 and 2. इसका भी मैक्सिमम पॉसिबल नेबर काउंट 2. E2 के लिए देखें तो 1 2 and 3. E1 के लिए भी सिमेट्रिकली 1 2 and 3. एंड F1 के लिए नेबर काउंट कितना होगा? अगेन 1 and 2. एंड सिमिलरली F2 के लिए भी मैक्सिमम नेबर काउंट कितना होगा? 1 and 2. और यही सिमेट्रिक वैल्यूज तुम्हारी ब्लॉक XX के भी फ्लैट्स में चली जाएगी. सो दिस हैज टू बी 2 2, दिस हैज टू बी 3 3 एंड इसमें क्या आ जाएगा? अगेन वापस 2 and 2. Right? I'm again repeating, the blue values are not the exact neighbor counts. It can change, right? Obviously, these are the maximum possible values. Now we have to start reading the conditions one by one. ठीक है, कि करके conditions पढ़ते हैं, देखते हैं हम कुछ figure out कर सकते हैं कि नहीं कर सकते. The following information is also known. The maximum quoted price of a house in block XX is 24 lakh. तो block XX में जो आपका maximum possible value है of a house, there has to be a house in block XX, उसका total कितना है आपका? 24 lakhs. The minimum quoted price of a house in block YY is 15 lakh. तो इसमें maximum के around है और इसमें minimum के around condition दिया है. YY में आपका minimum 15 आना चाहिए and one such house is in column E. तो यहाँ पे आपका एक हाउस आपका क्या होने वाला है? एक वेकेंट हाउस होगा, राइट. जो ऑक्यूपाइड हाउसेज होंगे उसको हम क्रॉस कर देंगे. ठीक है, जो ऑक्यूपाइड आपका मिलेगा उसको हम तुरंत से क्रॉस कर देंगे. जो वेकेंट होगा विल सिंपली पुट दैट इन अ बॉक्स मे बी. ठीक है. रो वन हैज टू ऑक्यूपाइड हाउसेज, वन इन ईच ब्लॉक. देखते हैं अब ये सारी कंडीशन एक एक करके तोड़ते हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल आई विल गो अहेड विद दिस 24 लाख. नाउ जो मैक्सिमम कोटेड प्राइस है, आई विल जस्ट राइट दैट डाउन फॉर यू. वो हमारी क्या थी? बेस वैल्यू, दैट इज something between 10 and 12 depending on the availability of a what parking space, plus 5 times the road adjacency value which we have mentioned in the red color, and 3 times the neighbor count. That is not fixed, that can obviously change. The maximum possible values I have used, right? Now check करते हैं कि किस हाउस का
आपका जो मैक्सिमम प्राइस 24 है वो किस हाउस का आपका 24 बन सकता है. विल हैव टू चेक वेदर देयर इज अ यूनिक पॉसिबिलिटी टू दैट और देयर आर मल्टीपल पॉसिबिलिटीज. ठीक है. नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल, जैसे मान लो 24 आपको बनाना है. ठीक है. नाउ अगर आप एडजेसेंसी वैल्यूज नोटिस करो ब्लॉक एक्स एक्स में, तीन ही पॉसिबल वैल्यूज है. जीरो हो सकता है, वन हो सकता है, या फिर टू हो सकता है एडजेसेंसी वैल्यू के एटलीस्ट करस्पॉन्डिंग. अगर आपका जीरो हुआ तो आपका कभी भी 24 पहुंच ही नहीं पाएगा. बिकॉज अगर तुम मैक्सिमम भी ले लो, जैसे मान लो यहाँ पे अज्यूम कर लो, मान लो 12 वाला है. ठीक है. 12 प्लस 5 टाइम्स एडजेसेंसी वैल्यू अगर जीरो है तो वो जीरो हो जाएगा. 5 टाइम्स जीरो जीरो. अब ये जो आपका नेबर काउंट है उसमें भी नोटिस करो मैक्सिमम पॉसिबल वैल्यू आपको 3 दिख रही है ना. सो 3 इंटू थ्री 9 प्लस 12 21 ही एट मैक्स पहुंच सकता है इफ द एडजेसेंसी वैल्यू इज जीरो. इसका मतलब इसका मतलब क्या है, वो जो हाउस है जिसका आपका 24 आपका आस्किंग प्राइस है, वो हमारे जीरो जीरो एडजेसेंसी वैल्यूज तो नहीं हो सकते. देन इट कुड बी आइदर अ वन और अ टू. नाउ वन के तीन पॉसिबिलिटी है. आई प्रिफर दिस टू फर्स्ट. अगर टू नहीं हुआ राइट तो फिर वन वाला ही हो जाएगा. राइट. लेट्स से टू चेक कर लेते हैं फॉर एग्जांपल. मान लो अब टू को अगर मेरे को चेक करना है, सो आइदर इट हैज टू बी अ 10 और 12 प्लस 5 टाइम्स. अब अगर टू वाला है, ये वाला है, मतलब एडजेसेंसी वैल्यू टू वाला है, तो 5 इंटू टू कितना हो जाएगा 10 प्लस 3 इंटू समथिंग. अब ये ओवरऑल कितना बन जाना चाहिए 24. नाउ लुक एट दिस कैलकुलेशन. मान लो तुमने यहाँ पे 10 यूज करा तो 10 प्लस 10 हो जाएगा 20. बट प्रॉब्लम ये है 24 माइनस दैट 20 विल गिव मी 4. बट 3 का मल्टीपल 4 तो नहीं है. 3 में आप कुछ ना कुछ तो रखोगे ना, बट 3 का मल्टीपल तो नहीं आपका मिलेगा आपको बैलेंसिंग जो 4 है. दैट मीन्स मैं 10 के साथ तो नहीं बना सकता. व्हाट अबाउट 12? अगर मैं 12 यूज करता है ऐसे 12 प्लस 10 अगेन 22 बना. डिफरेंस बचा आपका कितना बचा 2. 3 का मल्टीपल आपका 2 भी नहीं है. एंड हेंस दिस एक्चुअली प्रूव्स कि हमारा एडजेसेंसी वैल्यू हम 2 लेके 24 नहीं बना सकते. सो 24 इस वाले का भी नहीं बनने वाला है, जीरो वाले का भी नहीं बनने वाला है. तो इन तीन में से, ये जो तीनों आपके वन है, इनमें से किसी एक हाउस का आपका टोटल जो आस्किंग प्राइस है, मैक्सिमम कोटेड प्राइस है, वो 24 आएगा. तो मतलब एक पार्ट तो फिक्स हो गया. इन तीनों में से अगर कोई भी है तो ये पार्ट तो फिक्स है ना, 5 इंटू वन ही होना है वहां पे. एंड देन इट हैज टू बी आइदर अ 10 और अ 12. अब आप चेक कर लो किसके साथ आप 24 बैलेंस कर पाओगे. अभी 3 इंटू समथिंग भी आना बाकी है. नाउ इफ आई टेक अ लेट्स से 10, 5 15 हो गया. 24 माइनस 15 9 बचा. 3 इंटू थ्री से हमारा आ जाएगा. दैट इज परफेक्ट. अगर हमने 12 लिया होता, 12 प्लस 5 से 17 आता. 24 माइनस 17 वुड हैव गिवन मी अ 7. बट 3 का मल्टीपल अगेन 7 आपका नहीं आएगा. एंड हेंस दिस केस गेट्स एलिमिनेटेड. इसका मतलब नॉट दिस एंटायर केस, मतलब 12 वाला केस आपका पूरा का पूरा एलिमिनेट हो जाएगा. मतलब यहां से फिर तुम्हारा एक्चुअली में क्या फिक्स हो जाएगा, ये इसमें हमें क्या लेना पड़ेगा 10 बेस प्राइस हो जाएगी. और 5 इंटू वन इन तीनों में से तो ऑब्वियसली था, और 3 इंटू थ्री आना है. सो इन तीनों में तुम्हारा 3 दैट इज नेबर काउंट कहाँ आ सकता है, यही आ सकता है ना, बिकॉज इन दोनों का तो मैक्सिमम नेबर काउंट ही 2 है. दैट मीन्स ये जो हमारा B2 है, दिस B2 गाई, this will actually be a vacant house because उसी लिए आपका मैक्सिमम कोटेड प्राइस है और वो अप फॉर सेल है. सो B2 हमारा हो गया. और B2 में याद रखना आपका, लिख भी लिखते हैं कहीं पे, हम लिख लेते हैं B2 के लिए 10 है आपका, राइट 10. सो दैट एक्चुअली मीन्स कि B2 इज अ हाउस विद नो पार्किंग स्पेस बिकॉज उसका बेस प्राइस सिर्फ 10 ही यूज हो पाया. सो 10 प्लस 5 इंटू वन प्लस 3 इंटू थ्री बना है. राइट. सो दैट इज B2. एंड B2 के कुछ implications भी हैं. बिकॉज B2 हमारा वेकेंट है और यहाँ पे नोटिस करो इसका नेबर काउंट हमने कितना लिया 3, तब जाके वो 24 बना है. क्लियर. वो हमारा 24 बना बिकॉज इसमें हमने 3 इंटू थ्री ही रखा है और कहीं तो ये पॉसिबल था ही नहीं. इसका मतलब इसके एक्चुअली में फिर ये तो हमने फिलहाल मैक्सिमम लिखा था, बट अब बिकॉज ऑफ दिस कैलकुलेशन और इसका 24 बनना है, बिकॉज ऑफ दिस आई कैन एक्चुअली गो एड एंड से कि इसके एक्चुअल में आपके तीन नेबर होने वाले हैं. सो इसके 1 2 3 ये तीनों नेबर है. अगर ये तीनों नेबर है तो हम ये बोल सकते हैं कि नन ऑफ दीज थ्री विल बी अनऑक्यूपाइड. ये तीनों ऑक्यूपाइड होंगे. सो ऑक्यूपाइड के लिए हमने क्या बोला था, सिंपली हम क्या कर देंगे क्रॉस कर देंगे. ठीक है. सो आई क्रॉस दिस आउट. ये आपका अवेलेबल नहीं है, मतलब ये ऑक्यूपाइड है. ये भी आपका ऑक्यूपाइड है और ये भी आपका ऑक्यूपाइड है. राइट. आई होप दिस इज क्लियर. नाउ इसमें ना
एक जो नेक्स्ट पॉइंट था, ये सेकंड पॉइंट, इसको भी हम यूज कर लेते हैं साथ में, बिकॉज इसने क्या बोला था, रो वन, दैट इज दिस रो वन हैज टू ऑक्यूपाइड हाउसेस क्रॉस वाले, वन इन ईच ब्लॉक। मतलब इस ब्लॉक में रो वन में एक ही ऑक्यूपाइड होगा, तो वो एक ऑक्यूपाइड तो आ चुका है। इसका मतलब ये भी बन रहा है कि ये जो बाकी के आपके दो हाउसेस हैं, ये दोनों अप फॉर ग्रैब है। मतलब ये दोनों आपके अनऑक्यूपाइड है, ये भी अनऑक्यूपाइड है, ये भी आपका अनऑक्यूपाइड है। राइट, अब तुम्हें बाकी वैल्यूज फिलहाल चेंज करने की जरूरत नहीं है। राइट, जो नेबर वाला काउंट था, देखेंगे क्वेश्चंस के अकॉर्डिंगली वी कैन एक्चुअली गो बैक टू द कैलकुलेशन। बट येस, वी आर प्रिसाइसली अवेयर ऑफ दिस फैक्ट कि हमारा B2 वेकेंट है, A1 हमारा वेकेंट है और C1 हमारा वेकेंट है, while B1, A2 and C2 आर एक्चुअली ऑक्यूपाइड। राइट, आई होप यहां तक की कैलकुलेशन सबको समझ में आ गई। Now we'll read the like remaining conditions. There are not a lot of conditions, so that is the best part of this. So ये तो 24 हमने यूज कर लिया, अब इसमें हम ये वाला यूज कर लेंगे। द मिनिमम कोटेड प्राइस ऑफ अ हाउस एंड ब्लॉक वाई इज 15 लाख। इसमें हमारा एक हाउस, जैसे कि हमने इसमें चेक करा था 24 के लिए, इसमें हम चेक करेंगे किसके लिए, मिनिमम के लिए 15, एंड उसमें भी और अच्छी कंडीशन दे दी है, एंड वन सच हाउस इज इन कॉलम ई। तो मिनिमम जो हमारी वैल्यू आने वाली है वो 15 लाख आने वाली है, और वो हमारा किस में होने वाला है, कॉलम ई में होने वाला है। तो ये हम चेक कर डालेंगे, इसी में चेक करना है, इन दोनों के लिए पॉसिबिलिटी चेक करनी है। लेट्स रीड मोर कंडीशन। रो वन हैज टू ऑक्यूपाइड हाउसेज, वन इन ईच ब्लॉक। तो रो वन में आपके दो क्रॉस आने वाले थे, एक क्रॉस इधर आ चुका है, तो इन तीन में से आपका एक जगह और क्रॉस आएगा। क्लियर? बोथ हाउसेज इन कॉलम सी आर वेकेंट। नाउ दिस इज अ वेरी सिंपल कंडीशन, उसने पहले ही बोल दिया बोथ हाउसेज इन कॉलम ई आर वेकेंट, तो ये भी तुम्हारा वेकेंट है। तो पहले ही बोल दिया उसने, ये भी वेकेंट है और तुम्हारा ये भी वेकेंट है। हाँ, बस अब वो डिफरेंस है कि इन दोनों, दोनों ही वेकेंट है, अप फॉर सेल दोनों ही है, बट इनमें से किसी एक की प्राइस फिर आपकी क्या आने वाली है, 15 लाख आने वाली। तो वही हम एक्चुअली चेक करेंगे, इन दोनों में से कौन से हाउस की आपकी प्राइस 15 लाख बनेगी। और क्या कंडीशन है, लेट्स कंप्लीट द कंडीशंस फर्स्ट। Both houses in E are vacant, fair enough. Each of column D and column F has at least one occupied house. तो इन दोनों में at least एक क्रॉस और इसमें भी at least एक क्रॉस आएगा, दो भी क्रॉस आ सकते हैं, बट at least एक एक क्रॉस आपका इस कॉलम और इस कॉलम में आना चाहिए। एंड लास्ट, देयर इज ओनली वन हाउस विद पार्किंग स्पेस इन ब्लॉक YY। इसमें आपका एक ही हाउस है विद पार्किंग स्पेस। देखते हैं अब इसका क्या रिलायंस है। नाउ लेट्स गो बैक टू दैट 15 वाला। ठीक है, अब उस 15 को चेक करने का हम ट्राई करते हैं। देखो यार, सपोज सपोज करते हैं ये E1 हमारा एक्चुअली में क्या है, 15 का वैल्यू क्रिएट करता है। सो फिर से वही सेम कैलकुलेशन, बेस प्राइस 10 या 12 हो सकती है, इसमें 5 इंटू जीरो ही होना है, राइट, इसमें तो 5 इंटू जीरो ही होगा, प्लस 3 इंटू समथिंग आएगा। अब क्या ये हमारा 15 बन सकता है, इसको चेक करते हैं। अगर इस चीज को 15 बनना है, तो अब नोटिस करो यहाँ 10 नहीं ले सकते, बिकॉज फिर 5 बचेगा, 3 के मल्टीपल में 5 नहीं आता। यहाँ तुम्हें क्या लेना पड़ेगा, 12 लेना पड़ेगा। ये किसके लिए कर रहे हैं हम, E1 के लिए कर रहे हैं, चेकिंग दिस फॉर E1। E1 को अगर 15 बनना है तो यहाँ 12 आएगा, तो यहाँ मतलब 3 इंटू 1 आएगा। ठीक है, वॉट अबाउट दिस E2? अगर हम E2 के लिए चेक करें, वही बेस प्राइस 10 12 के ऑप्शन है, यहाँ आपकी बार लेकिन 5 इंटू 1 आ गया। अब ये बिकॉज 5 इंटू 1 है, तो ऑब्वियस सी बात है, लाइक 3 में कुछ नहीं आने वाला है ना, 3 इंटू आपका क्या आएगा, 0 आएगा, और यहाँ से 5 प्लस सीधा सीधा आपका क्या बनना है, 10 बनना है। तो इसका क्या मतलब निकल के आया, जैसे E2 के लिए अगर आप फोकस करो, E2 अगर वो हाउस है, राइट, E2 अगर वो हाउस है जिसका आपका आस्किंग प्राइस या जो मैक्सिमम कोटेड प्राइस अगर 15 बनना है, सो ये वाला कैलकुलेशन होगा। दैट मींस E2 विल बी अ हाउस विद नो पार्किंग स्पेस, ऑल्सो इसके जीरो नेबर्स होंगे। यहां प्रॉब्लम है, यहां प्रॉब्लम एक्चुअली में ये है, बिकॉज दिस लीड्स टू अ कॉन्ट्रडिक्शन ऑफ द कंडीशंस। कैसे, इसके अगर जीरो नेबर्स हैं, फिर आप ये कह रहे हो कि ये भी अनऑक्यूपाइड है और ये भी अनऑक्यूपाइड है। यस, ये भी अनऑक्यूपाइड है और ये भी अनऑक्यूपाइड है। अब याद करो, ये कंडीशन थी कि इस कॉलम में एटलीस्ट एक क्रॉस, मतलब एक ऑक्यूपाइड तो हो गई। तो अगर ये अनऑक्यूपाइड है तो ये ऑक्यूपाइड हो जाएगा, इसमें क्रॉस आ जाएगा। सिमिलरली जीरो नेबर की वजह से ये भी अनऑक्यूपाइड है, इसमें भी एटलीस्ट एक क्रॉस आना था, तो इसमें क्रॉस आ जाएगा। बट फिर वो आपका जो ओरिजिनल कंडीशन था, रो वन हैज टू हाउसेस वन इन ईच ब्लॉक, तो एक क्रॉस इसमें आना है और इसी रो में इस वाले ब्लॉक में क्रॉस आना है, बट यहां तो दोनों जगह क्रॉस आ गए। अगर हमारा E2 बिकम्स
like of 15, right? I hope you're able to follow that entire flow, right? नहीं समझ में आया, थोड़ा सा पीछे जाओ, आपको समझ में आएगा। E1 E2 दोनों पॉसिबल थे। E2 को अगर होना है तो ये दोनों ही तुम्हारे क्या होने पड़ेंगे, वेकेंट होने पड़ेंगे। सब्सिक्वेंटली ये दोनों आपके ऑक्यूपाइड होंगे, बट दोनों ऑक्यूपाइड नहीं हो सकते, इनमें से कोई एक ही ऑक्यूपाइड होगा, बिकॉज इसमें एक ही क्रॉस आपका आ सकता है बिकॉज ऑफ रो वन वाला कंडीशन, राइट? इसका मतलब ये कंडीशन आपका नहीं है। सो आपका इसका प्राइस क्या हो जाएगा, 20, सॉरी इसका प्राइस क्या हो जाएगा तुम्हारा 15। तो ये वाला है वो 15 वाला, राइट? अब ये 15 अगर है तो इसमें क्या कैलकुलेशन था, इसका मतलब ये समझ में आ गया कि इसमें ये 12 यूज होने वाला है, ठीक है, राइट? इवन में 12 के साथ ही आपका 15 बनेगा। सो 12 का मतलब इसमें तुम्हारा पार्किंग स्पेस है। अब इसका मतलब ये समझना, पार्किंग स्पेस के लिए कंडीशन ये दी थी, देयर इज ओनली वन हाउस विद पार्किंग स्पेस इन ब्लॉक वाई वाई। सो अकेला यही हाउस है आपका जिसमें पार्किंग स्पेस है, तो अब कहीं पे भी पार्किंग स्पेस नहीं आएगा। तो अगर हम कभी भी और कैलकुलेशन हम करेंगे किसी के लिए भी ये मैक्सिमम कोटेड प्राइस, तो हम कभी 12 नहीं ले सकते। अब अकेला एक 12 इसी में आपका यूज हो सकता था, बिकॉज दैट इज द ओनली सोल हाउस इन ब्लॉक वाई वाई टू हैव अ पार्किंग स्पेस। नेक्स्ट, मूविंग फॉरवर्ड। अब चलो दोनों आपके अनऑक्यूपाइड है, इसमें इस कैलकुलेशन के हिसाब से इसमें क्या समझ में आया, 3 into 1 होना है ना। 3 into 1 का मतलब इसका एक क्या होगा, नेबर होगा, मतलब इसका जो आपका नेबर काउंट है वो आपका 1 होने वाला है, तभी ये 15 बना था। सो इसका मतलब या तो ये आपका ऑक्यूपाइड है, या तो इसमें क्रॉस आएगा, या तो तुम्हारा इसमें क्रॉस आएगा। आई होप दिस इज परफेक्ट। इन दोनों में से कोई एक आपका क्रॉस आने वाला है। नाउ इनमें से कोई एक क्रॉस आने वाला है, मतलब इनमें से कोई एक आपका वेकेंट भी होगा। सो आइदर D1 इज वेकेंट और F1 इज वेकेंट। सपोज, अब इसमें भी हम केस वर्क करेंगे, इसमें हम चेक कर रहे हैं। सपोज मैंने बोला कि F1 तुम्हारा वेकेंट है, राइट? सपोज मैंने करा F1 मेरा वेकेंट है। अब ये अगर वेकेंट है तो इसकी कुछ आस्किंग प्राइस तो बनेगी ना, कैलकुलेट करके चेक करते हैं, ठीक है? अगर F1 मेरा वेकेंट है तो इसका मैक्सिमम कोटेड प्राइस कितना निकलेगा? तो इसमें हम 10 यूज करेंगे, वो हम स्टैब्लिश कर चुके हैं, बिकॉज पार्किंग स्पेस में हो नहीं सकती। सो 10 आ जाएगा, प्लस इसमें हमारा क्या हो जाएगा, ये जीरो हो जाएगा, राइट? ये हमारा जो एडजेसेंसी वैल्यू है वो तो जीरो ही रही, तो 5 into 0 हो गया, प्लस 3 टाइम्स नेबर काउंट। अब पॉइंट ये है कि अगर ये अनऑक्यूपाइड है, अगर ये अनऑक्यूपाइड है तो इस कॉलम में कोई एक तो ऑक्यूपाइड होगा ना, एक क्रॉस तो आएगा, तो ये वाला ऑक्यूपाइड होना पड़ेगा। सो इसका फिर ये वाला एक नेबर काउंट होगा, एक नेबर काउंट होगा। सो 10 + 3 into 1 आ जाएगा इसका मैक्सिमम कोटेड प्राइस। बट दैट इज अगेन अ कॉन्ट्रडिक्शन। क्यों कॉन्ट्रडिक्शन है? बिकॉज इसने बोला था द मिनिमम कोटेड प्राइस ऑफ अ हाउस इन ब्लॉक वाई वाई इज 15 लाख। अगर ये अनऑक्यूपाइड हुआ, अगर ये अप फॉर सेल हुआ, तो इसका जो मैक्सिमम कोटेड प्राइस बनेगा वो 13 बनेगा, जो कि 15 से नीचे हो जाएगा। दैट इज नॉट पॉसिबल, एंड हेंस वी फाइनली लाइक लीड टू द फैक्ट कि हमारा ये वाला अनऑक्यूपाइड नहीं है, क्योंकि इन दोनों में से कोई एक ऑक्यूपाइड, कोई एक अनऑक्यूपाइड है, तो ये अनऑक्यूपाइड नहीं हो सकता। ये वाला आपका क्या हो जाएगा, ऑक्यूपाइड, एंड दिस विल बी अनऑक्यूपाइड। आई बात समझ में? दिस विल बी अनऑक्यूपाइड। एंड अगेन इस कॉलम में भी आपके लिए एक क्रॉस तो आना ही था, राइट? सो ये वाला तो अनऑक्यूपाइड है, तो ये वाला डेफिनेटली आपका ऑक्यूपाइड होगा। दिस हैज टू बी अ ऑक्यूपाइड हाउस। इसमें आपका एटलीस्ट एक क्रॉस आना था, तो ये आपका क्रॉस आ चुका है। अब ये वाला आप नोटिस करो, अब आपके पास और कोई कंडीशन नहीं है। सो दिस F2 हाउस हैज बोथ द पॉसिबिलिटीज, राइट? ये आपका ऑक्यूपाइड भी हो सकता है, ये आपका अनऑक्यूपाइड भी हो सकता है। हाँ, अब आप चेक करना चाहोगे कि क्या ये एक्चुअली में वो वाली वैल्यू 15 या 15 से ऊपर है कि नहीं आपका, तो आप चेक कर सकते हो। बिकॉज अगर ये मान लो अनऑक्यूपाइड है, अगर ये मान लो अनऑक्यूपाइड है, तो इसका आपका आस्किंग प्राइस, इसका जो मैक्सिमम कोटेड प्राइस है वो कितना बनेगा, 10। याद करो 12 नहीं ले सकते, 10 बनेगा। और इसका एडजेसेंसी वैल्यू कितना है, 5। तो 15 तो ऑलरेडी आ ही चुका है, तो मिनिमम से आपका ऊपर ही रहेगा। बाकी इसका एक आपका एक्चुअली में क्या होगा, नेबर होगा। सो 3 और आ जाएगा, 3 into 1 से 3 तो 18 होगा। दैट इज परफेक्टली फाइन, बिकॉज मिनिमम 15 था, तो उससे ऊपर तो जा ही सकता है। सो दिस F2 कैन बी बोथ ऑक्यूपाइड एज वेल एज अनऑक्यूपाइड। तो ये हम फिगर आउट यूनिकली तो नहीं कर सकते। लेट्स गो टू द प्रॉब्लम्स नाउ। हाउ मेनी हाउसेज आर वेकेंट इन ब्लॉक XX? सो कितने हमारे वेकेंट है, ये ब्लू बॉक्सेस, तो इट हैज टू बी 3।
Which of the following houses are definitely occupied? ऑप्शन में चेक कर लो, which are definitely occupied. F2 and A2 क्रॉस आना चाहिए definitely, right? F2 and A2, F2 definitely तो नहीं है. D2 and B2, D2 and B2 occupied, B2 तो occupied नहीं है. D2 and B1, D2 occupied, B1 occupied. So this has to be a correct answer. Which of the following options best describes the number of vacant houses in row 2? Vacant houses, ये वाले boxes in row 2. तो दो तो कंफर्म है, ये वाला हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता. सो इसीलिए आपकी पॉसिबिलिटी है या तो दो ही रहेगा या तो ये तीन हो जाएगा बिकॉज ऑफ F2. So either 2 or 3. What is the maximum possible quoted price for a vacant house in E? ई वाले में मैक्सिमम पॉसिबल कोटेड प्राइस आपको फिगर आउट करना है. सो इसका तो 15 आया था, राइट? इसका तो हमारा 15 आया ही है. इसके लिए चेक कर लेते हैं एक्चुअली में इसमें से मैक्सिमम पॉसिबल आपका क्या बन सकता है. तो लेट्स डू दिस फॉर E2. अब हमें क्या करना है, हमें इसका मैक्सिमम पॉसिबल निकालना है ना. तो अगर E2 के लिए हम मैक्सिमाइज करना चाह रहे हैं तो ऑब्वियसली इसमें पार्किंग स्पेस तो नहीं है बिकॉज वो ऊपर है, तो 10 आएगा. प्लस इसका एडजेसेंसी वैल्यू 1 है, तो 5 इंटू 1 से 5 आ जाएगा. हाँ, अब बात रही इसका जो नेबर काउंट है, तो नेबर काउंट ये वाला डेफिनेटली इसका नेबर है बिकॉज ये तो ऑक्यूपाइड है. तो हमें बिकॉज मैक्सिमाइज करना है तो इसका भी हम नेबर काउंट, मतलब इसको हम नेबर काउंट 2 देंगे, तो हम इसको अज्यूम करेंगे कि ये हमारा ऑक्यूपाइड है बिकॉज वी आर ट्राइंग टू मैक्सिमाइज दिस ऑब्वियसली. ठीक है, तो ये अगर हमारा ऑक्यूपाइड रहेगा तो इस वाले का नेबर काउंट कितना हो जाएगा, 1 एंड 2, बिकॉज ये तो खाली था. सो 3 इंटू 2 हो जाएगा, दैट इज 6. सो ओवरऑल हमारे पास वैल्यू इसकी कितनी तैयार हो जाएगी, दैट इज 21. दैट इज द मैक्सिमम पॉसिबल. विच हाउस इन ब्लॉक वाई वाई हैज पार्किंग स्पेस? तो वो अकेला एक हाउस हमें पता है कौन सा था, E1. सो दैट इज द फाइनल आंसर. राइट, सो दिस वाज अ वंडरफुल सेट आई वुड से, बिकॉज इसमें एनालिटिकली आपको सोचना है, थोड़ा नंबर क्रंचिंग भी करना है, हैव टू ट्राई आउट द पॉसिबिलिटीज, राइट? So this is a good set. If you have any doubts, you can just put that in the comments. Thank you. Bye.